وہ ہمارے ہاں ایک کینٹ فارمیسی ہے, 15-16 ڈاکٹر ہے, تو ان میں ایک ڈاکٹر غیر مقلد تھا, نام اس کا شرافت علی تھا, اگرچہ شرافت اس کے قریب نہیں آئی تھی, نام شرافت علی تھا. اب ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اپنے مولوی صاحبان کو دعوت دے آنا. اب وہ آتے, چائے مٹھائی وغیرہ چلتی اور 2-4 رسالے رکھ جاتے وہاں, جو ان کا طریقہ کار ہے. 2 ڈاکٹر اور رفع دین کرنے لگے. وہ ایسے ایسے ان میں بات پھیلنی شروع ہو گئی, اور یہ ذہن تو سب کا بن گیا حدیث. وہ ہمارے دورہ حدیث شریف میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا, عبدالغفور طلاگن کا. تو ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر طلاگن کا تھا, وہ کبھی دوائی کی ضرورت ہوتی تو اس وجہ سے وہ اپنا واقف ہے وہاں چلا جاتا. اب وہ گیا تو جناب وہ 4 مولوی بیٹھے غیر مقلد, خوب مٹھائیاں اڑ رہی ہیں, چائے اڑ رہی ہے, اور وہ ان کو فقہ کے خلاف اکسا رہے ہیں. کہتا مجھے جواب تو ان کی باتوں کا آتا نہیں تھا, جناب میں بھی تب تک خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا. میں بڑے غصے میں بولا کہ آپ ایک ہی طرف کی باتیں سنتے ہیں, ہمیشہ دوسری طرف کی کیوں نہیں سنتے. اب وہ ان سے اتنے متاثر ہو چکے تھے, کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو جلدی خام کا غصہ آ گیا ہے. یہ مولوی صاحبان جب سے آنے لگے ہیں انہوں نے ایک بات بھی کبھی اپنی نہیں بتائی. جو سناتے ہیں نبی پاک کی حدیث سناتے ہیں, ایک بات بھی انہوں نے کبھی اپنی نہیں. دکھا کہ وہ دوسری طرف والے بھی حدیث سنائیں گے نا نبی پاک کی, اچھا اگر کوئی ہو تو لے. اس نے آ کر میرا شاگرد آصف شاہ بخاری, اس کو کہا, اس نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کو کتاب حدیث رائے حدیث دیا جائے. وہ لے گیا, چھوٹے اس کا اپنا ہے, اس نے کتاب دی. جو بڑا ڈاکٹر نام محمد الیاس تھا, یہ جی کتاب دے. اچھا حدیثیں ہیں کہ دیکھ لیں, اگر حدیثیں ہیں تو رکھ لیں, نہیں ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں. دیکھا کہ باقی حدیثیں لکھی ہے, ترجمہ لکھا ہے. کتنے کی آئی ہے؟ پہلا ایڈیشن ہے جی 100 روپے کی ہے. ٹھیک ہے, اس نے 500 کا نوٹ نکالا کہ یہ رکھ جاؤ, اور 400 کی اور ایسی کتابیں استاد جی سے مشورہ کر کے لے آئے. آیا, میں نے کہا کہ نماز مسنون, رسول اکرم کا طریقہ نماز, اور میرے مجموعہ رسال دیا. اب یہ تو کتاب رکھ کے پیسے لے کے آ گیا. کچھ شرافت علی نے فوراً شرارت کی اور فون کیا اپنے مدرسے میں کہ خیر مدارس سے کتاب آئی. کچھ فرمانا اب تو اوپر سے ہو گیا, جانا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی پاک والی نماز بتاؤں تو پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کی, پھر نہیں کی, ثم لا یعود. تو دیکھو نفی بھی آ گئی, اس بات بھی آ گیا. جب ہم اپنے دعوے کے دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں, نفی اس بات, تو آپ سے بھی ہم دونوں دعووں کی دلیل مانگتے ہیں تاکہ مکمل آئے. آپ 18 جگہ رفع دین نہیں کرتے, کیونکہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہوتے ہیں نا, 8 دونی 16, اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں نہیں کرتے. 18 جگہ آپ رفع دین نہیں کرتے اور 10 جگہ کرتے ہیں. تو جس طرح ہم نے اپنا مکمل دعویٰ پیش کیا ہے نفی اس بات کی حدیث, آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں 18 جگہ کی نفی ہو اور 10 جگہ کا اس بات ہو. اب وہ ڈاکٹر بھی گنے, 18 کی نفی تو نکلے ہی نہ, اور 10 جگہ کا اس بات بھی پورا نہ ہو, 9 جگہ کا بنے. تو یہ ساتھ ہے کہ دیکھو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک سنت چھوڑنے والا لعنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم سیاستہ کا نام یہ دھوکے کے لیے لیتے ہیں. اس کے مطابق نماز پڑھنے سے یہ نمازی نہیں بنتے, لعنتی بنتے ہیں. بلکہ آصف شاہ نے کہا کہ آج تک تو کہتے تھے کہ حنفیوں کی نماز خلاف سنت ہے. اب یہ حدیث سنا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی خلاف سنت پڑھتے تھے, کیونکہ ایک سنت چھوڑتے نہیں ذاکاؤں میں رکعتین والی. اس پر وہ چاروں گھبرا گئے. تو گنتی کرے وہ پوری نہ ہونا, 18 کی نفی نکلے اور نہ 10 کا اس بات نکلے. تو ان کو بات بدلنے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کرنے لگا کہ بڑے متبع سنت تھے اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا.
उठते वो फजाइल बयान करने लगा और मैंने किताबें देखनी शुरू कर दी कि कौन कौन सी किताबें हैं। तो मुस्लिम हुमैदी रखी थी, मैंने उठा ली और वो सफर निकाल लिया 277। वो जब 2-3 मिनट उसने फजाइल बयान किए तो कहता है मैंने कहा कि आज जाकर कम से कम 10 नफल शुक्राने के पढ़ना। ये क्यों कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आज यहां नहीं थे। सोचे तो क्या होता कि देखो ये उनकी रवायत है मुस्लिम हुमैदी में कि वो पत्थर मारते थे हर उस आदमी को जो हर कफ्ज और रफा ऊंच नीच में रफा जैन नहीं करता। हर ऊंच नीच पर रफा जैन की जाए तो 4 रकत में 28 जगह बनती है और आप करते हैं 10 जगह, तो गोया 4 रकत में 18 लानते अल्लाह भेजता आप पर और 18 पत्थर अब्दुल्ला बिन उमर मारते तुम्हें। तो हर 4 रकत में तुम 18 लानतों के 18 पत्थरों के हकदार हो। बस इस पर तो जो उछले ना कि देखो जी कैसी सख्त बातें कर रहा है, ये बिल्कुल गलत तर्जमा कर रहा है, ये अपने अल्फाज वापस ले। इसने कहा कि ये रवायत रखी है सामने। डॉक्टरों ने कहा कि आप ये पत्थर मारना किसका तर्जमा कर रहे हैं? उसने कहा कि हासा बहु लिखा है, हा स्वाद बाह। उन्होंने कहा कि इसका तर्जमा पत्थर मारना नहीं है, नरसंहार करना नहीं है। ये तर्जमा करता था कि अब्दुल्ला बिन उमर तुम्हें संसार कर देते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लिख दो, इनसे भी लिखवा लेते हैं तर्जमा, हम किसी प्रोफेसर से पूछ लेंगे। तो लिख दिया संसार करना। उनसे कहा कि तुम लिखो कि संसार करना गलत है, इसका माना होता है पत्थर मारना। तो डॉक्टर हंस पड़े कि फिर तो एक ही बात हुई, फिर क्या कौन सी गलती हुई इसमें। अब उसके बाद वो घबराए, सियासता सारी भूल गई बेचारों को। सुनने को बड़ा बहकी उठाई कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रफाई जान करते थे। क्या वो आप वाली तो साबित ही नहीं, अव्वल तो रवायत ही सही नहीं है। आप उसमें 18 की नफी 10 का इस बात दिखा दे, मैं अभी बावजू हूं 4 नफल पढ़ूंगा रफाई जान के साथ। क्यों आप धोखा देते हैं लोगों को? अब वो गिने पूरी ना हो, फिर उसी बहकी से उसने निकाल के दिखाया अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत कि मैंने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी। वो पहली तकबीर के वक्त रफ़ा जान करते थे, फिर नहीं करते थे। मैं देखो नफी से बात दोनों आ गई है ना, एक जगह करना और बाकी किसी जगह ना करना। हम जो नबी पाक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो सिद्दीक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो फारूक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है। आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है। आपकी रफ़ा दैन तो है ही नहीं। आखिर उसने कह दिया कि शिया भी रफ़ा दैन करते हैं। शिया के रफ़ा दैन करने की 2-3 हदीसें हैं, हर तकबीर में रफ़ा दैन करना इब्ने माजा में। शाफियों की रफ़ा दैन करने की 2-4 हदीसें हैं, लेकिन गैर मुकल्दों की रफ़ा दैन की एक हदीस भी दुनिया की किसी किताब में नहीं है। और सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं थोता चना बाजेगा ना। अब इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा लगा कि शियों की रफ़ा दैन साबित है। फिर उसने बताया कि उनकी जो साबित है वो भी इतनी जितनी जूते पहनकर नमाज पढ़ना, बस। गोया जो रफ़ा दैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहनकर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफ़ा दैन के बगैर नमाज पढ़ता है वो ऐसे जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। जूते पहनकर नमाज पढ़ने से ज्यादा किसी की रफ़ा दैन का सबूत किसी हदीस में मौजूद नहीं है। खैर वो किताबें बंद करके चल दिए। अब डॉक्टर साहबान को एहसास हुआ कि वाकयातन हम एक ही तरफ की बातें सुनते रहते हैं, दूसरी तरफ की कभी नहीं सुनते। तो उन्होंने आसिफ शाह साहब से कहा कि आप अपने उस्ताद साहब से कहे कि कभी यहां हमारे यहां आए। कहा कि उनके पास तो वक्त नहीं होता, वो दुकानों पर नहीं फिरते। वो तो वहां भी आप जाएंगे तो शायद वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि इन्होंने न मिर्जाइयों के खिलाफ कोई काम करना है, न ईसाइयों के, न बरेलवियों के, न खारजियों के। उसने तो सारे मज़ामीन पढ़ाने होते हैं, इसलिए वो तो फारिग नहीं होता। अब जब वो हैरान हुए कि ये बगैर बुलाए रोज आए रहते हैं और वो सुना बुलाने से भी नहीं आता,
اور शौक हुआ, अच्छा फिर आप उनसे इजाजत ले, हम वहां हाजिर होंगे। अब कोई महीना गुजर गया, मैंने कहा मैं फारिग नहीं हूं। वो और ज्यादा प्रिय कौन आदमी है जो मुलाकात का वक्त ही नहीं देता। महीने के बाद उसने कहा जी वो रोज फोन करते हैं, तंग करते हैं, आप वक्त दे दे। मैंने कहा एक शर्त पर वक्त मिलेगा कि पहले 1 घंटा वो मेरी बात सुनेंगे, ताकि मुझे पता चले कि 1 घंटा कम कम मैंने सही काम पर लगा दिया है। न वो आकर अपने इधर उधर के सवालात पूछने शुरू कर दे तो असल बीमार जो है वो असल बीमारी छुपाता है ना, इधर उधर की बातें पूछता है ना आके। तो उनकी जो असल बीमारी है उस पर 1 घंटा मैं बात करूंगा, पहले वो उनको सुननी पड़ेगी, उसके बाद फिर उनको सवालात का मौका देंगे हम। उन्होंने कहा जी हमसे 2 घंटे पहले बात कर ले, हम आराम से सुनेंगे, वो वक्त जरूर हमें दे, हम मिल रहे हैं। आ गए, अलैक सलैक करके बैठ गए सारे। वो शराफत अली भी साथ है जो गैर मुकल्लिफ था। बैठ गया जब, मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आजकल क्या कुछ हो रहा है? कि जी दीन की तहकीक हो रही है। इनका दीन की तहकीक का तरीका ये नहीं जो आपने इससे इख्तियार किया है। जी और क्या है? मैंने कहा आप 4 साल वहां से छुट्टी करें, फार्मेसी से यहां आ जाए और वहां अपनी फार्मेसी में कुमारों को बैठाएं नुस्खे लिखने के लिए। किन को बैठाएं? कुमारों को। जी वो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, जो कुछ आप दीन के साथ कर रहे हैं वो आपकी डॉक्टर के साथ करेंगे, इतना कुछ ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो अगर पढ़े लिखे थे वो समझ गए कि उनको क्या पता डॉक्टरी क्या है, मैंने तुम्हें क्या पता दीन की तहकीक क्या है। तुमने दीन को डॉक्टरी से भी निकम्मा समझा कि जो उठे इसकी तहकीक शुरू कर दी, इसका कोई असूल ही नहीं है दुनिया में। मैंने कहा ये तो वाकई गलती है हमारी। फिर चूंकि मुझे पता था उन्होंने आना है, मैंने एहयाल उलूम रखी थी तर्जमे वाली। उनका ये एहयाल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है, आज से 1000 साल तकरीबन पहले का आदमी है ये। लिखा है कि जो शख्स दीन का पूरा इल्म नहीं रखता और फिर दीन में तहकीक का नाम लेता है, उससे जानी 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? जानी सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, और ये कितने मुसलमानों के ज़हन में शुबहात पैदा करके उनका ईमान बर्बाद करेगा। उनका डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये गुनाह है जो आप कर रहे हैं। फिर मैंने मीज़ान कुबरा शरानी उठाई, वो भी तर्जमे वाली तर्जमा शाया हो गया रखी थी मैंने। लिखा है अल्लामा शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो दीन से पूरा वाकिफ ना हो फिर दीन में दखल दे। इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि बाउले कुत्ते को बाद में मारे और उसको पहले कत्ल करे, क्योंकि बाउला कुत्ता जिस्म का दुश्मन है और ये ईमान का दुश्मन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, आजकल अल्फाज बदल गए हैं ना। जिसको पहले जमाने में कंजरी कहते थे, बाजारी औरत कहते थे, आजकल लफ्ज बदल गया है कि ये एक्ट्रेस है। वो भी बहुत चौड़ी होती है कि मेरी इज्जत हो रही है, मैं एक्ट्रेस हूं। जिसको पहले दल्ला कहते थे, बचोला, उसका नाम आजकल एक्टर है, वो बड़ा खुश है। बात वही है। अब देखो ना, जिसका नाम पहले तबर्रा था कि सहाबा पर तबर्रा करते हैं, अब उसका नाम हो गया है तनकीदे साले। 7 साले का लफ्ज भी है कि मौदूदी साहब तनकीदे साले करते हैं, तो वही तबर्रा ही ना। नाम जरा नरम हो गया है। जिसका नाम पहले तहरीफ कुरान था, अब उसका नाम तफहीमुल कुरान हो गया, क्योंकि तहरीफ से लोग तंग है ना लफ्ज से। जिसका नाम था कि तकिया है, कहते नहीं पॉलिसी है जमात की। आज पॉलिसी है कि औरत सदर ममलकत बन सकती है, कल पॉलिसी बन जाएगी कि नहीं बन सकती। तो उन अल्फाज को आजकल बदला जा रहा है, उनकी जगह ज़हनी आवारगी का नाम तहकीक रखा हुआ है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कादियानियों के बारे में, तो मेरा जो सदर था मुझे नहीं पता था कि ये मौदूदी है। तो मैंने कहा कि बाकी खुदा के नबी जितने भी सच्चे हैं वो अल्लाह की रहमतें लेकर आए थे। ये मिर्जा जो है ये बद्दुआएं करता था कि फलां मर जाए, फलां मर जाए, या अल्लाह जल्जला आ जाए, या अल्लाह सैलाब आ जाए, या अल्लाह ताउन पड़ जाए, या अल्लाह काल पड़ जाए।
ये मनहूस नहूसते लेकर आया था और नहूसत से खुश होता था, जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना, ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी सईद मोहम्मद हयात पसरूरी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तुगयानी है मिर्जा के मेरी ते नबूवत दी निशानी है। इस सैलाब आ गया तो मौजा हो गया कि मेरा सब। किसे मुखालिफ दी गांव मज मोई है महमूद आखे मेरे ते प्यो दी पेश गोई है। किसी की भैंस भी मर जाती, भेड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वाले साहब की पेश भी पूरी हो गई। तो ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौजूदी है। तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त रहता था कि सैलाब है, ये है, हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मांगती है, अल्लाह कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए। 2 दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटियां इकट्ठी कर लेती है। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डालना है डालते चले जाओ। तो मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि 1-2 दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटियां हमारी बन जाती है। तो वो सदर साहब की तरफ बात वो 20 साल हरा रहा था। जी हाँ जी हाँ। बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो दिया था। तो मैंने कहा कि देखिए, जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ निकाल के रखी कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी, अल्लाह नुनाज़ि अल अम्र अहलहु, कि अहल से नाअहल मुनाजत नहीं करेगा। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजियत है नाअहल की मुजतहिद के साथ। फितना इनकारे हदीस तहकीक का नाम नहीं है, मुहद्दिसीन फन के अहल हैं, उनके साथ ये नाअहल मुनाजियत करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फहम मिसाल दिया करता हूं, जब उनसे कहे ना भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये गैर मुकल्लद कहते अबू हनीफा कोई मासूम थे, मुनकर हदीस कहते इमाम बुखारी कोई मासूम थे। तो मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का है। झगड़ा यहां मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर का। तो फिर मैं समझाने के लिए आम फहम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझे आगे। इसमें कि देखिए, एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक बना लिया। मैंने देखा भाई देखो खूब कमाई हो रही है, अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया। और का नाम क्या रखा? अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अब कोई मेरे पास नहीं आता कि ये ना पढ़ा ना लिखा नाम मोहम्मद फाजल। अब मैं जब देखता हूं कि सारे गाहक उधर जा रहे हैं, इधर मेरी तरफ कोई नहीं आता, अब मैं गुस्से में चीखता हूं। ये सब अल्लाह के मुनकिर हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। जो अल्लाह को मानेगा वो यहां आएगा, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो वहां जाएगा। सिर्फ इतना रखने से मैं अल्लाह ताला का माअज़ल्लाह मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। कभी मैं कहता हूं ये सारे मुशरिक हैं, क्योंकि मेरा एतमाद किसी सनद पर नहीं कि फलां ने मुझे सनद दिया, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया है। मैं सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करके बैठा हूं, सिर्फ अल्लाह पर। और ये डॉक्टर को शाफी समझते हैं, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो मुझसे दुआ लेगा। अब जो मेरा इनकार करे वो अल्लाह का मुनकर बनेगा, क्योंकि नाम जो मैंने रख लिया अल्लाह तवक्कल दवाखाना। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं जी शाफी रफ़ाई दैन करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, हमारे पीछे पड़े। मैंने बताया था कि उनकी रफ़ाई दैन एक दलील पर मबनी है, इनकी किसी दलील पर मबनी नहीं। तो उसकी मैं 2 मिसालें आम फहम दिया करता हूं कि देखो, डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के माहिर हो जाता है, मासूम नहीं होता, उससे भी रिएक्शन होते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मरीज था, उसने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दें, डॉक्टर साहब नहीं मिले, मैंने लगा दिया। मरीज मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा मौके पर इंजेक्शन लग गया, और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। अब मैं ये कहकर जान छुड़ा सकता हूं
کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے، یہی فرق شافعی کی رفع دین اور غیر مقلد کی رفع دین میں ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہوتا، صرف اس فن کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو جاتا ہے ان سے، لیکن میں یا کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے، کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا، گاڑی سے کوئی ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی، تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ وہ بے شک کہے کہ میں تو خانے کعبہ لے کے جا رہا ہوں حاجی کرانے کے لیے اس کو، لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے۔ وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتا وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا، مجھے ہی پکڑنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر نہیں ہے، اناڑی ہے۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں، یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے۔ یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجتہد اپنے فن کا ماہر ہے، اسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسی اجر عطا فرمائے۔ محدث اپنے فن کا ماہر ہے، منکر حدیث منازعت کرنے والا ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری صفحہ 14 جلد اول، کہ جو معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آ گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لیے کمہاروں کو بٹھائیں، اگر کمہار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی۔ تو میں نے کہا غیر مقلد جو نااہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نااہل جو ہے وہ قریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقیہ حجت ہے، فہم صفی قطعاً حجت نہیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، لیکن نبوت کی صفت نذیر میں اللہ نے فقہا کو وارث بنایا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں، بشیر ہونا اور نذیر ہونا۔ تو لینذروا قومہم یہ اسی صفت نذیر کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کو نبیوں کے بعد نذیر قرار دے دیا ہے، اس لیے صفت نذیر میں فقہا انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے کیا ہے؟ ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگے لہم البشرا، یہ وہی صفت بشیر ہے نا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا، ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے۔ ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے، فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے، واجب کو واجب سمجھ کر، سنت کو سنت سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر، مکروہ کو مکروہ سمجھ کر چھوڑا جائے، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے۔ اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصوف کے مطابق عمل کرنے سے۔ تو اس لیے صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ اور صفت نذیر میں وارث ہے فقہاء کرام۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم صحیح مل جائے اور ہمت مضبوط ہو جائے۔ علم صحیح ملتا ہے فقہاء سے اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنے۔ جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان اور ہمت کا بھی ہوتی چلی جائے گی۔ عالم اسباب میں یہ ایک مستقل ذریعہ ہے ہمت کے مضبوط اور قوی کرنے کا۔ تو اس لیے فقہاء کرام جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں صفت نذیر میں۔ تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے
اس کو اللہ کے نبی منازعت کہتے ہیں، قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں، امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں، بول کتے سے بدتر شرانی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا، جس کے پاس جاتے ہیں وہی قرآن سناتا ہے، بریلوی قرآن سناتے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ بریلوی والی مثال ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا سارے نماز کے آخری اتحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں نا؟ کہ جی ہاں، اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے۔ آپ بریلوی کے ہاں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم حنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے۔ آپ کہیں جی ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی فقہ کے 2 کتابوں کے حوالے دو، اس میں سنت کا لفظ لکھا ہو۔ وہ آپ کو 20 کتابیں دکھائے گا کہ سنت لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے ہو کر ہم درود پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کہے گا سنت کہ جی ہمیں کو 2 کتابیں دکھاؤ، وہ 20 دکھائے گا، 40 دکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے۔ اب یہ 2 مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو اذان سے پہلے نماز درود پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ حنفی میں دکھاؤ۔ اب آپ زور لگائیں گے فقہ، کہتے قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہیں مجھے فقہ ہے کہ تو قرآن کو نہیں مانتا، حدیث میں آتا ہے نا درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب پہلے 2 مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اب اسے فقہ حنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے، تو معلوم ہوا اگر پہلے 2 مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہا نے لکھ لیے، اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی اوجھل نہ رہتا۔ اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے، لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا۔ اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے، کبھی حدیث کے نام سے ٹھونسنا چاہتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ بس سوال تو ہمارا یہ ہے نا، وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے۔ ایک بریلوی والی اسکول میں آ گیا، میں ٹیچر تھا تو ہیڈماسٹر سے بریلوی تھا میرا، اس کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے تو اس کا ویسے ہی وہ ابوسن کم تریرا ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں، یہ تو سنی نہیں ہے۔ ہیڈماسٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہے۔ ان کا بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ میں ہاں کیسے؟ اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی، ان کو کیا پتا سنت کیا ہوتی ہے۔ یہ سنت کی تعریف لکھ دیں۔ اب وہ گھبرا گیا، کہنے لگا جی آپ فرض کی لکھیں تعریف۔ میں نے ساری یاد کی تھی، میں نے فرض کی تعریف لکھ کے ہر ماسٹر کی جیب میں ڈال دی۔ میں نے کہا اس سے سنت کی تعریف لکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ، اور مولوی غلام علی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور الانوار کا، اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھے۔ اب وہ کہاں سے لکھے؟ کہتا ہے جی یہ اس لیے سنی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتی اذان سے پہلے۔ میں نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کون کہتا؟ ہم تو ہر آخری اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام کرتے ہیں۔ آپ کو پھر ہم درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ ان کا اصل میں ہم حنفی سنی ہیں، ہمیں ان 2 درودوں کا حکم تو فقہ حنفی میں ملا، اس کا ہمیں فقہ حنفی میں حکم نہیں ملا۔ کیا ہے؟ آپ اس کا فقہ حنفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے۔ میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے، کہ جی ہاں جنازے میں سنت ہے، اذان سے پہلے کیا ہے؟ اب وہ لگا سوچنے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فوراً کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی ہے اس میں درود آ رہا ہے، جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے،
اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا, سپیکر ہو تو پڑھا جاتا ہے, سپیکر خراب ہو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں, اذان والا بھی نہیں ہے نا. اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے کہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا. اور اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا نہ ہو, یہ سن 53 میں شروع ہوا ہے. اس سن 53 میں قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی. سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی. تو غالباً 3 یا 13 مارچ کی تاریخ ہے, اخبار میں سر ظفر اللہ سعود وزیر خارجہ تھا. یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولوی سردار احمد بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیصل آباد میں, اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل عاجز آ گئی ہے, اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے برباد کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتی. تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ ہمت کریں. اور ایک تھیلی بھی پیش کی, پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا. تو اس دن سب سے پہلے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھا گیا, اور مغرب کی اذان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں, اور 2-4 دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے پیچھے میرے کے پیچھے لگے, گستاخ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دے. گستاخ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے. بس حکومت کا کام بن گیا, مرزائیوں کا کام بن گیا. تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر دیا, اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور وہ تحریک فیل ہو. تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے, اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تعریف تو مجھے آئی نہیں. کہتا جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباح ہے. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مباح کے معنی نہیں آتے, ان کو سمجھا دیں. مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو, چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھرے, گدھے پر سواری کرنا, یہ مباح ہے نا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباح کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہے, نہیں بالکل. اب میں نے ہرماز صاحب سے کہا, میں نے کہا ہرماز صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اذان نماز کی آنکھ میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ بڑا گھبرا ہے, کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا اور پھر بھاگ گیا وہاں سے. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جائیں, ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں فقہ حنفی میں دکھا دے. تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذہن ہمیں نہ دے, پہلے سے جو مفہوم آ رہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے, اور اسی کا نام تقلید ہے. یہ اسی بیماری کا علاج ہے. میں نے کہا 4 آدمی بحث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں, آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھی صحابہ تابعین, ہم نے ترجمہ کیا ہے مودودی صاحب. جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں, تو کہتے نہیں ترجمانی کی ہے. پہلے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے, پھر کہتے نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا, ترجمانی کی ہے. ترجمانی میں جائز ہے, جو چاہے کرتے چلے جائیں آگے. تو بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب میں ایک رسالہ تھا رفع دین کا. میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. انہوں نے وہ رسالہ نکالا, تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں, میں 3 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں, مجھے نہیں دیتے, آپ کو کہاں سے مل گیا؟
हमारे पास तो 10-12 रखे, सारे आपको दे देंगे, उनका जरूर दे देना। मैंने कहा अच्छा हुआ आप ये रिसाला ले आए। मैंने कहा ये आपने पढ़ा है सारा? कि जी पढ़ा है। उनका कम से कम ये तो आपने पढ़ा कि ये भी हदीसें पेश करते हैं और हम भी हदीसें पेश करते हैं, लेकिन आपने गिनती करके देख ली होगी कि जितनी इन्होंने पेश की उनमें ना 18 की नफी निकलती है ना 10 का इस्बात, और जितनी हमारी इन्होंने लिखी और जवाब देने की कोशिश की वो पूरी नफी इस्बात है, एक जगह का इस्बात और बाकी जगह की नफी। ये तो ठीक है। वो शराफत अली बोला कि वो जो हदीसें उन्होंने लिखी हैं वो सही हैं और ये ज़ईफ है। मैंने कहा बस यही बात देखनी है कि वो सही है, ये ज़ईफ है। मैंने कहा अल्लाह रसूल ने सही ज़ईफ कहा है? नहीं जी, मुहद्दिसीन ने कहा है, उन्होंने बकायदा हवाले दिए हैं। तो ठीक है। मैंने वो रिसाला पकड़ा, सफ़ा 12 पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी की हदीस के बारे में लिखा था कि ये हदीस बिल्कुल झूठी और ज़ईफ है, क्योंकि इसका रावी आसिम बिन कुलैब है। आसिम बिन कुलैब। मैंने कहा आसिम बिन कुलैब की वफात 135 में है। कूफे में रहता था ये। इमाम अबू हनीफा का जमाना भी इसने पाया, सहबैन का भी। उन्होंने इससे बाकायदा हदीसें ली, इनको शिका करार दिया। उसको ज़ईफ कहने वाला 800 साल बाद का आदमी है, जो न उसके इलाके का न उसके जमाने का। उसको कैसे पता चला कि ये ज़ईफ है? हमारे इमाम ने जिसको शिका कहा हम तो उसको शिका मानते। फिर बुखारी सफ़ा 868 पर भी इसकी तारीख मौजूद है। मुस्लिम में 5 हदीसें हैं, तिरमिज़ी में 17 हदीसें चली और उनको हसन सही कहा है। तो उसके बाद इनके बाद आने वाला को उसको ज़ईफ कह रहा है तो बगैर वजह के, तो वो तो कोई कबूल ही नहीं बात। फिर दूसरी बात ये कि खुद इस रसाले वाले को इस बात पर यकीन नहीं। कैसे? मैंने कहा सफ़ा 8 पर इसने हजरत वाइल बिन हुजर की हदीस नकल की है रफ़ा जैन के बारे में। अबू दाऊद का हवाला है ना कि जी हाँ, मैंने अबू दाऊद निकाल के रखी कि इस संद में भी आसिम बिन कुलैब है। अब ये आखिर हर समझ नहीं आती कि जब हजरत वाइल की हदीस में आसिम बिन कुलैब आ जाए तो वो सिका हो, और जब अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आ जाए तो फिर वो बेचारा झूठा हो जाए। अब वो डॉक्टर से आकर पढ़े लिखे, वो बड़े गौर से देखने के लिए हमें दिखाएं, ये तो एक अजीब धोखा है कि एक ही रावी एक जगह सिका और एक जगह ज़ईफ है। मैंने देखा, देखो अच्छी तरह देखो। फिर हजरत बरा बिन आज़िब की हदीस जो हम अबू दाऊद में है कि हजरत ने पहली दफा रफ़ा जैन की, फिर रफ़ा जैन नहीं की। उस पर लिखा था कि इसमें एक रावी यजीद बिन अबी ज़ियाद है जो कूफी शिया है, और आगे चुपता हुआ जुमला लिखा था कि अब शियों की बात मानते हैं क्योंकि फिका जाफरी और फिका हनफी दोनों का खमीर कूफा से ही उठाया है। मैंने कहा ये देखिए, इसने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर जरा की है। सफ़ा 8 पर ही हजरत बरा की एक हदीस उसने भी नकल की थी, बैकी थे। मैंने बैकी निकाल कर सामने रख दी कि इसमें वही यजीद इब्न अबी ज़ियाद मौजूद है, और साथ इब्राहिम बिन बशार रमादी एक झूठा रावी है। ये इसके यहां सही है, और वहां कोई झूठा रावी नहीं है। रहा ये कि ये शिया है या नहीं, तो अगर शिया होगा तो रफ़ा जैन की हदीस में होगा ना, तर्के रफ़ा जैन में कैसे शिया? क्योंकि शिया तो रफ़ा जैन के कायल है ना। लेकिन ये अजीब बात है कि वहां वो शिया सुन्नी था और यहां आके शिया हो गया है। हालांकि इसके उल्ट तो माना जा सकता है कि रफ़ा जैन की हदीस रवायत करते वक्त वो शिया हो, क्योंकि शियों का मसला है। और बिदती के असूल यही है उसके बारे में कि अगर रवायत उसकी बिदत की तायीद में हो तो मरदूद है, और उसकी तरदीद में हो तो वो मकबूल है। तो तर्के रफ़ा जैन की हदीस तो शियों की तरदीद में है ना।
अब फिर वो सारे देखने लगे कि जी वही रावी है। मैंने कहा बिल्कुल वही है। अच्छा, अब वो वहां से उठे और सीधे उसके पास गया जिसने सारा लिखा था। कहा कि जी ये आप जरा दिखाएं, ये क्या किस्सा है? देखा, हाँ मुझे किसने बताया था कि आप अमीन के पास गए हैं, वो तो धोखेबाज आदमी है। देखा कि ये धोखे आपके तो उसने दिखा दिए हैं, फिर मेरे पास आए कि जी वो तो वाकई धोखे निकले। मैंने कहा कि ये इसने एक हदीस नकल की है इब्न उमर से और 26 किताबों के हवाले दिए इसने, ताकि अनपढ़ों पर रोक पड़ जाए कि बड़ी किताबों में हदीस है, गिनो 26 में, कि इनमें से किसी एक किताब में भी इन लफ्जों में हदीस नहीं है, किसी एक में नहीं है। मैंने कहा नहीं है। मैंने तालिम 2 बिठा दिए कि इनको किताबें दिखाते जाओ और ये दिखाते। 26 किताबें देखी, वो हदीस उन लफ्जों में आई नहीं। तो फिर उसके पास गए, 26 किताबों पर एक साथ में झूठ बोल जाना, इतनी हिम्मत को मिर्जा कादियानी को भी नहीं थी, तुम्हें पैदा हो गई है। उसके बाद उनकी मिन्नत करने लगा कि ये रिसाला अमीन को न देना। उसने कहा हमारे पास तो 10 थे, वो 10 के 10 उसे दे दिए और उसने अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिए। तो फिर वो रिसाला था 16 सफ़े का। मैंने उसमें 83 झूठ निकाले, 83 16 सफ़े, वो लिख कर मैंने डॉक्टर साहबान को भेज दिए। अब उन्होंने फिर कहा कि जी हम आपसे मसला समझते हैं, वक्त देना चाहते हैं, कहीं आ जाए। अब वहां रिसाला लेकर बैठ गए। वो एक जी ये बात आप किताब में दिखाए, वो हो तो दिखाए ना, ये दिखाएं आपकी जिस किताब का वाला भी उसमें कहां है। बड़े परेशान हुए। उसके बाद उन डॉक्टरों ने फिर बाकायदा अपने पैर पर फैसला लिख के शाया किया कि हम आम मुसलमानों को खुसूसन और अपने डॉक्टर भाइयों को अमूमन और डॉक्टर भाइयों को खुसूसन ये दरखास्त करते हैं कि गैर मुकल्लदों का फिरका बड़ा धोखेबाज फिरका, इसके धोखे से बच जाए। तो मकसद ये है कि इस ज़हनी आवारगी का नाम इन्होंने तहकीक रखा हुआ है कि हम दीन में तहकीक कर रहे हैं। गोया पिछली आइमे मुजतहिदीन की तहकीक जो है वो नाकिस है और इनकी तहकीक जो है वो कामिल है। तो अब ये इस महीने का जो खैर आया है, मैंने रात भी अर्ज किया था, इसमें मेरा मुनाजरा पहली किस्त आई है जो कसूर में रफ़ा दैन पर हुआ। इनको पकड़ने का इतना आसान तरीका है, अब तो इनसे मुनाजरा इतना आसान मैंने कर दिया कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं, बिल्कुल बस जाएं कि जी हमने नमाज सीखनी, खुदा के लिए हमें हदीस पाक वाली नमाज सिखा दे। अब करना क्या है कि नमाज के जितने अज़कार और अफ़आल हैं, हर एक पर 3 सवाल पूछते जाना है। कितने सवाल? पहला उसका हुक्म क्या है, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। वो जो कुछ कहे फर्ज है, वाजिब, हदीस में दिखा दो। दूसरा, अगर वो जिक्र है तो ये पूछना है कि जी ये जिक्र आहिस्ता किया जाए नमाज में या बुलंद आवाज से। वो कहे आहिस्ता, अच्छा इसकी हदीस सुना दे। वो कहे बुलंद आवाज से, अच्छा इसकी हदीस सुना दे। तीसरा सवाल भूल का करना है कि अगर भूल कर इसकी जगह फलां जिक्र पढ़ लिया जाए तो अब नमाज का क्या हुक्म है, हो गई या नहीं। वो कहे हो गई, अच्छा हदीस में दिखा दो। नहीं हुई, अच्छा हदीस में दिखा दो। पूरी नमाज तो कुजात तकबीर तहरीमा आज तक उसके मसाइल हमें नहीं दिखाते। आगे पीछे तलाश करते हैं कॉलेज के लड़कों को, आए हम उनको रस के डाले। मैंने 2-3 लड़कों से कहा कि भी उनसे पहले दिन ही बात कर ले कि भी आपका मकसद यही है ना कि हम अहल हदीस हो जाए, ये एक और मकसद है। यदि यही है तो हम झूठे अहल हदीस नहीं बनना चाहते, सच्चे बनना चाहते हैं। पूरी नमाज जो है वो हमें हदीस से दिखा दे। हम हल्फनामा लिख के देते हैं कि हम उसी दिन अहल हदीस हो जाएंगे
जिस दिन आप पूरी नमाज दिखा देंगे, और नीचे लिख दें कि अब अगर देर करेंगे हफ्ता तो भी गुनाह आपको, महीना देर करेंगे तो भी गुनाह आपको, क्योंकि मेरी नमाज जो गलत हो रही है, साल देर करेंगे तो भी गुनाह आपको। उसने लिख के दे दिया। एक कहता है अब मैं दूसरे दिन रोजाना फोन कर देता हूं कि जी मुकम्मल नमाज मिल गई है तो आ जाऊं, मैंने याद हदीस होना है। वैसे आगे से गालियां देना शुरू कर देते। एक तबलीगी जमात का साथी जो ना किसी से लड़े ना भिड़े, 2-4 तकरीरें मेरी उसने सुनी थी, उसका मामू ससुर गैर मुकल्लिफ था। ये कहीं चिल्ला लगा के आया, हैदराबाद में रहता है, वो आ गया, अपना वक्त भी जाया किया और लोगों का भी जाया किया, नमाज तो होती नहीं। क्या मामू जी हम तो दीन सीखने निकले हुए हैं, तो आप सिखा दे सही नमाज क्या है। मैं कोई मौलवी हूं कि आप मौलवी साहबान को ले आए। 4 मौलवी साहबान आ गए, ये दुकान से उर्दू तर्जमा कुरान का और उर्दू तर्जमा सियासता का ले आया और रख लिया। जी पहले ये फरमाएं कि तकबीर तहरीमा फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। फर्ज है। फर्ज कहां से साबित होता है? कुरान पाक से कि ये तर्जमे वाला कुरान है, वो आयत निकाले, नीचे तर्जमा लिखा हो कि तकबीर तहरीमा फर्ज है। तो दूसरा मौलवी उससे लड़ पड़ा कि तूने फर्ज क्यों कहा है। उसने कहा कि आप लड़े ना, घर जाके लड़े, आप बताएं क्या है। उसने कहा सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत कहां से साबित होती है? हदीस से। ये सियासता रखी है उर्दू तर्जमे वाली, आप निकाल दें किस हदीस के नीचे लिखा है तर्जमा कि तकबीर तहरीमा सुन्नत है। अब तीसरा उसे कहता है तूने क्यों सुन्नत कहा। उसने कहा कि आप लड़े ना, आप बता दें आप क्या कहते हैं। ना फर्ज है ना सुन्नत है। अच्छा आप यही हदीस में दिखा दें कि ना फर्ज है ना सुन्नत है। ये खुराफात फोकहा की हैं। कोई चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। जो किसी चीज को फर्ज वाजिब सुन्नत कहता है बिदअती है, बेदीन है। अब बिस्मिल्लाह, उसने बुखारी निकाल के आगे रख दी, बाब ईजाबुत तकबीर, और उर्दू तर्जमा था तकबीर तहरीमा के फर्ज होने का बयान कि बिस्मिल्लाह करें, लिखे कि बुखारी बेदती है, बेदीन है, क्योंकि ये तकबीर तहरीमा को फर्ज कह रहा है। निसाई खोल के रख दी, बाब फर्ज तकबीर, तकबीर के फर्ज होने का बयान, लिखे निसाई बिदती और बेदीन। अब उसके सर हो गया कि ये जो इन्होंने हुक्म फर्ज का लिखा है बुखारी और नसाई ने, अगर हदीस में है तो दिखा दो, और अगर अपनी राय से इन्होंने ये हुक्म लिखा है तो लिखो कि ये दोनों अहल हदीस नहीं थे, अहल और राय थे। मौत उनके लिए। बुखारी को अहल और राय लिखे, नसाई को अहल और राय लिखे। आखिर अच्छा ये सवाल रहने दो, फातिहा पर मुनाजरा कर लो। मुनाजरा तो मुझे करने नहीं आता, मैं तो नमाज सीखने के लिए बैठा हूं। मुनाजरा किसी से करें, और जब फातिहा आएगी तो उसका मसला भी मैंने पूछना है। लेकिन मुझे तो समझ आ रहा है कि यहां तकबीर ही नहीं चलेगी, पहली फातिहा पढ़ी जाएगी आपके मजहब की सारे की। कि अच्छा ये सवाल हमने लिख लिया, कर्ज रहा, अगला सवाल पूछे। ताकि मैं तो दुकानदार हूं, इमाम नहीं हूं, या मुकद्दी बनता हूं नमाज में, या अकेला पढ़ता हूं। तो अकेला नमाजी और मुकद्दी जो है, ये तकबीर तहरीमा ऊंची आवाज से कहना सुन्नत है इसके लिए, या आहिस्ता आवाज से? आहिस्ता आवाज से कहना सुन्नत है कि ये कुरान हदीस रखा है, कोई आयत निकाल दे इसमें लिखा कि आहिस्ता आवाज से कहना सुन्नत है। कहने लगे कि इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, क्या तर्जमा है कि इमाम ऊंची अल्लाह अकबर कहे, मुकद्दी आहिस्ता कहे। अब वहां तो सियासता रखी थी तर्जमा, जिसने कहा जरा मुझे निकाल के दिखाएं तर्जमा कहां है, ये हदीस निकालने में खुद तर्जमा पढ़ लूं। अब नहीं ये रहने दो, किताब रहने दो, किताब रहने दो, मैं तो अरबी नहीं जानता ना, आप मुझे नहीं, किताब रहने दो। अच्छा ये भी हम सब नोट कर लेते हैं, ये देखेंगे हदीस इसकी, अभी तो नहीं मिली, क्योंकि जो मेरे सामने पड़ी झूठी पढ़ दी है कोई, तो नहीं वैसी पढ़ दी थी हमने। कि तीसरा ये है कि मैं इंसान भूल जाता हूं, मैं बड़ी तेजी में आया
रुकू में चली गई थी जमात, तो जल्दी में मैंने कहना था अल्लाह अकबर, तो मेरे मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह और मैं रुकू में चला गया। अब अल्लाह अकबर की जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकल जाए तो नमाज हो जाती है या नहीं? एक कहने का हो जाती है, कैसे दिखाओ हदीस में। दूसरा कहने का तूने क्यों कहा हो जाती है? उसने कहा कि अच्छा तू बता, कहते नहीं होती। उनका दिखा हदीस में कहा। रफ़े दैन पर मुनाजरा कर लो। उसने कहा अल्लाह के बंदे मैं मुनाजरा करने थोड़ा बैठा हूं, नमाज सीखने बैठा हूं। आखिर 6 घंटे गुजर गए, जितने लोग वहां जमा हो गए सब ने लिख कर दिया कि गैर मुकल्लिदीन अपनी तकबीर तहरीमा भी साबित नहीं कर सके। उन्होंने उसके फोटो तस्लीम कर दिए। कुछ चंद दिनों बाद मैं आया, मुझे उन्होंने कार्रवाई दिखाई कि ये कुछ हुआ है। मैंने कहा कि उन्वान मैं लिख देता हूं, कुछ फिर तस्लीम कर दो। मैंने ऊपर उन्वान लिखा कि हैदराबाद में गैर मुकल्लदों की नमाज का बगैर तकबीर के झटका हो गया। तकबीर भी साबित नहीं हुई ना, झटका हो गया। अब वो जो मैंने ये उन्वान लिखा उनको बड़ा चुभा, बड़े चीखे चिल्लाए। डीसी के पास चलेगा, देखो जी ये झटका लिखा है। वो डीसी फोन करे मदरसे में कि जी क्या लिखा है। वो मोदी साहब मुझे कहने के फोन डीसी का है। मैंने कहा मुझे दो। मैंने कहा इनसे पूछो झटका किसको कहते हैं। यही है ना कि हिंदू बगैर तकबीर अल्लाह और कहे जानवर मार देते हैं। तो जब इनकी तकबीर तहरीमा साबित नहीं हुई तो यही झटका है ना, इनकी नमाज का झटका हो गया। डीसी ने पूछा कि अच्छा भी झटका किसको कहते हैं? जी कहते तो इसे ही है कि तकबीर के बगैर हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? फिर तो तुम्हारी नमाज का झटका हो गया। तो ये मैं आपको वाकयात के अंदाज में इसलिए सुना रहा हूं ताकि वाकया भी याद रह जाए और सवाल भी, और काम करने का तरीका भी साथ साथ है। वही मेरा आसिफ शाह जो शागिर्द था जिसका मैंने पहले सुनाया, वो 1 साल जमात में चला गया, तबलीगी जमात में। जाता हुआ आया, रुमाल मुझे दिया, उसने ये दुआ करे मैं जा रहा हूं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो मिलने आया है, साल के बाद जब आएगा फिर भी मिलने आएगा या नहीं, या ये कहेगा कि हम लोगों को जोड़ते हैं, ये तोड़ता है। नहीं नहीं उस्ताद जी, आपका काम भी वहां करूंगा, और जो काम उनका होगा उनको कार्रवाई उनको सुनाऊंगा, जो आपका होगा आपको सुनाऊंगा, लिखूंगा। चुनाचे दूसरे महीने उसका खत आया कि हमारी तश्कील पहली शादरे में हुई। वहां 12 नौजवान तबलीगी जमात के नए नए गैर मुकल्लद हुए, जिनमें से 8 तो बिल्कुल जा चुके थे दूर और 4 अभी आ जाते थे जमात में कभी कभी। हम जो गश्त पर निकले, एक हाजी साहब जैसे रात एक आए हुए थे, वो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, उन्होंने उनको गैर मुकल्लद किया था सबको। हमने सोचा कि दाढ़ी वाला आदमी है, कोई 4 कदम साथ चलेगा, हमारी मदद करेगा। तुम्हारी नमाज नहीं होती, अपना वक्त भी खराब कर रहे, लोगों को खराब कर रहे हो। तो जो अमीर था गश्त का, मैंने उसे इशारा किया। आसमिशा कहता है कि मुझे जरा मौका दें बात करने। मैंने कहा हाजी साहब, मैं मुल्तान से अपना घर छोड़कर यहां फिर रहा हूं सिर्फ दीन सीखने के लिए, तो आप हमें बता दें कि हमारी नमाज में कौन सी गलती है, हम तो बड़े शुक्रगुजार होंगे आपके। मुकद्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है। जो मुकद्दी सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। हाजी साहब 1 मिनट, मैंने जेब से नोटबुक निकाली। मैंने कहा दीन का मसला है तो हमें बहुत ताकीद की जाती है कि दीन का मसला पूरा पूरा समझ लेना चाहिए, तो मैं लिख लूं जरा। मैंने लिख लिया कि मुकद्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो मुकद्दी खुद सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वो लिखकर मैंने 3 मरतबा से कि हाजी साहब सुन ले ताकि पक्की बात रहे, कोई शबा ना रहे मसले में। कहा ठीक है। मैंने कहा अब देखिए हाजी साहब, मैं आपका बड़ा 3 दफा मैंने शुक्रिया अदा किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अपने साथियों से भी मैंने कहा कि देखो कितनी बड़ी बात मिल गई नमाज के ठीक होने के बाद। वो बहुत खुश। मैंने कहा हाजी साहब देखो, एक मेरे पास किताब है फज़ाइल अमाल, उसमें अगर कोई आयत है तो आगे हवाला दिया हुआ है,
कोई हदीस है तो आगे हवाला दिया हुआ है, कोई वाकया है किसी बुजुर्ग का आगे हवाला दिया हुआ है, तो वो मैं सुनाता हूं। मुझे कोई पूछे कि ये कहां है, तो मैं उससे हवाला दिखाता हूं। अब ये मसला भी मैंने लोगों को सुनाना जो आपने दिखाया, क्योंकि दीन का मसला है। लेकिन वो मुझे पूछेंगे कि ये कहां है, तो आप मुझे वो किताब लिखा दें हदीस की, उर्दू तर्जमा उसका मिलता हो, मैं वो साथ रख लूंगा, जिसमें हदीस के नीचे यही तर्जमा लिखा हो कि मुक़द्दी पर सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, जो मुक़्तदी खुद फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। और दो हदीसें, एक हदीस मुझे और लिखा दे। दूसरी हदीस क्या हो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक फर्ज का हिसाब लेना है या सारे फर्जों का, सबका, कि दूसरे के नमाज में कुल फर्ज कितने होते हैं, बस ये हदीस लिखा। ये उनके बाप को भी नहीं आती। अब ये कहें कि दो हदीसें लिखा दो, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, वो जान छुड़ाए, आखिर वो लड़ पड़ा। तो वो जो चार लड़के नए नए उसी की वजह से गैर मुकल्लद हुए थे, वो आपस में फोन ही हमारे एक दूसरे को कि यार हमें तो कहता था बड़ी हदीसें आती है, दो भी नहीं आ रही। वो शाह साहब कहने के मैंने इशारा किया कि बस हम चले गए आगे। अब मैंने उन चार लड़कों से कहा कि अब आपका काम है जोर के बाद चले जाना कापी पेंसिल लेके, कि हाजी साहब हदीसें मिल गई हैं। वो गए, बाहर निकले, अच्छा वो हदीसें मिल गई तो फिर नोट करवा दी हमें, गालियां देने लगे। वो बैठ गए एक कोने में। यहां क्यों बैठ गए हो कि आप शायद कोई वजीफा पढ़ रहे, गालियों को पढ़ रहे, उसके बाद दो हदीसें लिखवा दें, चले जाएंगे। शाम को फिर चले गए। अब वो अंदर से ही गालियां देने लगा। वो जो 3-4 दिन उन्होंने लड़के उसके पीछे लगे ना, उसने आकर कहते हमसे मुआफी मांगी कि हम आइंदा कुछ नहीं कहेंगे, आप इन लड़कों से हमारी जान छुड़ा दें। तो ये तो इनकी करतूत है कि दो हदीसें नहीं लिखा सके। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते 12 के 12 लड़के वापस आ गए, क्योंकि इनके पल्ले में तो कोई चीज ही नहीं है, और खाम खा लोगों को धोखा देते हैं। आकर नमाज मुकम्मल का हिसाब होना है, सारे फराइज पूछे जाएंगे ना, तो जिनको सिरे से यही मालूम नहीं कि फराइज है कितने, ये कहते हैं आजकल बड़े तंग है ना। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो इनके 5-6 मौलवी किताबों की गठिया उठाकर आ रहे थे, मजमा बहुत था, 2 दफा गिर गए। तो मैंने स्पीकर पर ऐलान किया भी रास्ता छोड़ दो, उलमा हजरात इल्म के बोझ से गिर रहे हैं, जरा करीब आ जाए। करीब आ गया जहां दरवाजा है, तकरीर बंद करो मुनाजरा होगा, बंद करो मुनाजरा होगा। बहुत अच्छा, ये 10-15 मिनट में मजमून समेट लेता हूं, फिर मुनाजरा कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, तेरे साथ नहीं करना। क्यों? तू प्राइमरी स्कूल का मास्टर है। मैंने कहा किसी हदीस में है कि प्राइमरी स्कूल से मास्टर से मुनाजरा जायज नहीं? वो जो मुझे दिखा दो, फिर मैं मौलवी साहबान की मिन्नत कर लूंगा कि आप मुनाजरा करें, मुझे तो हदीस पाक ने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, आप कौन है? मैं शाकुल हदीस हूं। बिस्मिल्लाह, जरा नमाज जोर की रखते सुनाए कितनी है? क्या पूछा मैंने? वो सारे अपने साथी हैरान कि आखिर वही प्राइमरी स्कूल का मास्टर निकला ना, क्योंकि जोर की रखते तो प्राइमरी जमात में पूछी जाती है ना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये प्राइमरी भी नहीं पढ़े हुए। अब वो कहता है जी 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत। इनका जरा ऊंची सुना दे, सब सुन ले। मैंने कहा भी देखो ये रखते बताए हैं 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत। ठीक, उनका 4 के साथ सुन्नत का लफ्ज हदीस में लिखा। आपने अपने अकीदे के मुताबिक 12 हदीसों के खिलाफ बताया हमें, क्योंकि हदीसों में लफ्ज ततव्वुन आ रहा है। ततव्वुन नफल को कहते हैं ना, और आप कह रहे हैं सुन्नत। मैं दोबारा सुनाता हूं जी, मैंने तो सुनाओ कि 4 नफल, 4 फर्ज, 2 नफल। सारे लोग हंस पड़े कि ये नहीं रखते आगे ये कहीं। अब वो साथ 2 गैर मुकल्लद ही थे, एक जल्दी से लपका कुरान पाक उठा के उसके सर पर रख दिया।
मौलवी साहब ये तेरे सर पर कुरान है, नीचे पांव के नीचे मस्जिद है। हमें तो तू बताता रहा 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, और अब कहता है कि 4 नफल 2 4 फर्ज 2 नफल। सुनते कहां गई? मैंने कहा भाई अभी तो पहला सवाल है प्राइमरी स्कूल के मास्टर का, सुनते गई। दूसरा सवाल हुआ तो फर्ज भी जाएंगे इंशाल्लाह। देखें इनका इल्म कितना है। अब वो कहते कि ये जो हमें पहले 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत कहां से बताया था? बेइज्जती जेवर से। कहता अच्छा हमें कहता बेइज्जती जेवर गलत किताब है, और जब मसला हम पूछते हैं तो बेइज्जती जेवर से बताता है हमें। बहुत झूठा आदमी है। वहीं से भाग गए। तो अब ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत यहीं पड़ती है हमें हुक्म मालूम होती तक कि ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, और वो अहादीस में है नहीं। इसलिए मुझे कोई पूछे नहीं जी फिक़ह और हदीस में क्या फर्क है, तो मैं तो बिल्कुल आम फहम अंदाज रखता हूं कि छोटे छोटे लोग भी समझ जाए। मैं बुखारी शरीफ तर्जुमे में रख देता हूं कि देखो इसमें वुजू का तरीका है, पढ़ लो। उसके बाद तालीमुल इस्लाम रख देता हूं कि इसमें वुजू का तरीका है, पढ़ लो। पढ़ कहते जी बिल्कुल एक जैसा है। इनका नहीं फर्क है। नहीं जी वहां भी हाथ धोना है, वहां भी चेहरा धोना है। मैंने कहा इसने आगे अहकाम भी लिखे हैं कि ये फर्ज है 4 चीजें, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये हदीस में नहीं है। ये फुकहा ने तायीन की है, वो हदीस में नहीं है। अब हमें तो जरूरत है इन आकाम की, तो ये हमें अगर हदीस में दिखा दें तो हम जगह छोड़ देंगे, हदीस में शुरू हो जाएंगे। अब इनसे इतना तंग है इन सवालों से, एक जगह 3 दिन बैठे रहे। उन्होंने कहा लिखो रफ़ा दैन सुन्नत है। क्या सुन्नत नहीं लिखनी? क्यों? कि तू कहेगा सुन्नत का हुक्म हदीस से दिखा। तो मैंने कहा जब तू अहल हदीस है तो उससे हदीस ही मांगूंगा, और क्या मांगूंगा? नहीं। मैंने कहा अच्छा लिखो सुन्नत नहीं है। अब ना सुन्नत नहीं है लिखे, ना सुन्नत है लिखे। कुछ बताओ तो सही ना, है क्या रफ़ा दैन? नहीं, हम नहीं सुन्नत लिखते। मैंने कहा इसे लिखो कि सुन्नत नहीं है। ये भी ना लिखे कि सुन्नत। 2 दिन गुजर गए, इस पर आई नहीं बिल्कुल। वही आसफ शाह कहने लगा कि एक जगह सखर का उसने लिखा मुझे, एक ऐसे फिर वहां मिल गया, आपकी नमाज खिलाफे सुन्नत है। मैंने कहा जी हम तो नमाज सीखने आए हैं, फरमा दे क्या सुन्नत का हमारे रह जाती है। रफ़ा दैन मैंने कहा कितनी जगह? 10 जगह मैंने लिख ली कि 10 जगह रफ़ा दैन करना 4 रकत में सुन्नत मुअक्कदा है। फिर मैंने कहा कि हजरत मुझे 2 हदीसें लिखा दें, एक तो वो हदीस जिसका तर्जुमा हो कि ये रफ़ा दैन 10 जगह सुन्नत मुअक्कदा है, और दूसरे ये कि 4 रकत में कुल सुन्नतें कितनी हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो पूरी नमाज पूछनी है ना, कुल सुन्नतें कितनी हैं। अब वो उनके बाप को भी नहीं पता कितनी है, तो फुकहा के मोहताज है इस बारे में। एक जगह मुनाजरा था, बैठे, इन्होंने फतवा दिया था कि जो रफ़ा दैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। अब ये तो इसी काम के लिए फारग है। मैं छुट्टी के बाद चला, मगर भी रात में पड़ी, इशा से थोड़ी देर पहले मैं वहां पहुंचा। मुनाजरा सुबह होना था, तो साथी कहने लगे कि ये सुबह से आए हुए हैं, मस्जिद एक ही है, बड़ी हदीसें सुनाते रहे लोगों को। कोई बात नहीं। इन्होंने इशा के बाद तकरीर का ऐलान तो नहीं किया कि नहीं किया। मैंने कहा मेरी तकरीर का ऐलान कर। अब वो पहला मौका था कि गैर मुग़ल मौलवियों को करीब बैठकर मेरी तकरीर सुनने का मौका मिला। मजमे नहीं है, बाहर बैठे थे चौक में। मैंने क्योंकि रफ़ा दैन पर मुनाजरा होना था, वो मसला नहीं छेड़ा। तकलीद और किरात खल्फ़ल इमाम पर मैंने तकरीर की। अब ये तो वही कह रहे हैं कि हम तो नहीं मुनाजरा करते। तकरीर खत्म हुई, अंदर आ गए, बस 2 मिनट जी, 2 मिनट, वही जो फतवा दे के गया था नमाज में, 2 मिनट कि जी मौलवी साहब ने जो तकरीर की है इसमें बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने कहा है कि जो इमाम ये गैर मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफा की तकरीर नहीं करते, ये बिल्कुल झूठ है। मैं ऐलान करता हूं कि जो इमाम अबू हनीफा की तकरीर न करे
وہ کافر ہے. پھر امام صاحب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. 10 منٹ تقریر کی. میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے